Good morning students. Today we are going to start chapter 14 statistics. In this chapter we will calculate the mean, mode and median. In exercise 14.1 we will calculate mean of the group distribution. Clear? In previous class 9th, we have calculated the median, the mean and median and mode, the ungrouped data or individual series. So let us discuss about the mean. Okay, let x1, x2, x3 and xn are n observation, and we have to calculate the mean x bar. So sum of all observation upon total number of observation, where sigma x bar equals to sigma xi upon n, or where I equals to 1 to n. Number of observation is n, so x bar is sigma xi upon n. Sigma xi is sum of all observation. Sum of all observation 1 to n. Okay, and n is total number of observation. Clear? If x1, x2, x3 up to xn having f1, f2, f3 up to fn frequencies, then mean x bar equals to sigma fi xi, where I is 1 to n, upon sigma fi, where I is 1 to n. Sigma fi xi upon sigma fi. Sigma fi means sum of all frequencies. Clear? So now in exercise 14.1 we will calculate the mean by following methods. The first is direct method. This is x bar equals to sigma fi xi upon sigma fi, where I 1 to n or I 1 to n. Second is assumed mean method. X bar equals to a plus sigma fi di upon sigma fi, or where I 1 to n. Clear? Where di equals to, this is deviation, xi minus a. A is assumed mean, and third is step deviation method. X bar equals to a plus sigma fi ui upon sigma fi into h. ui is
xi minus a upon h. h is class size, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. Let us start question number 1. As I have told you earlier that we are finding mean of group data. Okay. So question number first. A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plant per house. Which method did you use for finding mean and why? So these are the data. ठीक है. Number of plants 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, and their corresponding frequencies is 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3. यानी कि number of plants greater than or equals to 0 and less than 2, number of houses 1. ऐसे घर, ऐसे हाउस जिसमें प्लांट नंबर ऑफ प्लांट 0 या 0 से मोर देन और 2 से लेस देन है, नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं 1. ठीक है. तो इस डाटा के रिगार्डिंग हमें मीन फाइंड करना है. क्लियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड xi फाइंड करेंगे. कैसे करेंगे? ये होता है हाफ ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट. अपर लिमिट और लोअर लिमिट का हाफ करें, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके हाफ करें तो 0 प्लस 2 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा. 2 प्लस 4 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा. 4 6 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 6 और 8 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, 8 10 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 11 and 13. As this is Fi, sigma Fi is 20 because number of houses is 20. तो ऐड करके भी देख ले. 2 और 1 3, 4 9 15 17 और 3 20. ठीक है. और अब नाउ Fi xi, तो 1 को 1 से Fi को xi से मल्टीप्लाई करें. 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5, 5 से 1 35, 6 9 जा 54, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 39. क्लियर. नाउ ऐड करो सिग्मा Fi xi. तो 9 और 2 11, 11 4 15, 20 25 31 32, 2 कैरी 3 3 3 6 2 8 8 5 13, 13 और 3 16. क्लियर. तो x बार इक्वल्स टू, वी आर यूजिंग द मेथड, डायरेक्ट मेथड. x बार इक्वल्स टू सिग्मा Fi xi अपॉन सिग्मा Fi. तो Fi xi, sigma Fi xi is 162 and sigma Fi is 20. So 162 upon 20 is 8.1. Clear? Now mean number of plants is 8.1. और which method did you use for finding mean? We used direct method to find the mean, because the calculation is not very large.
the number, the frequencies and the intervals, the digits of the frequency and the intervals is very short, is very small. So we use direct method to find the mean. Clear? Now question number 2. Consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. Distribution है daily wages का 50 workers का एक factory का. Find the mean daily wages of the worker of the factory by using an appropriate method. Clear? Daily wages, ये daily wages given है 550, 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580 and 580 to 600. And the corresponding frequencies are 12, 14, 8, 6 and 10. Okay, their sigma fi total workers is 50. Calculate भी कर सकते हैं, sum कर सकते हैं 16, 24, 24 and 14, 38 and 38 and 12, 50. Clear? तो सबसे पहले कोई सी भी मेथड यूज करें. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड xi. xi मींस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. क्लियर? दोनों का प्लस करें, अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस करें, 2 से डिवाइड करें 510, 520, 540 कितना हो गया 1060. 1060 को 2 से डिवाइड करेंगे 530 आ जाएगा. फिर ये हो गया 1100 को 2 से डिवाइड करेंगे 550 आ जाएगा. और यहाँ 2 दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे 560 और 580 को प्लस करें तो 1140 को 2 से डिवाइड करेंगे 570 आ जाएगा. और दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पर 1180 5 से डिवाइड करेंगे 590 आ जाएगा. क्लियर? यहाँ हम एक मिड वैल्यू अज्यूम्ड करेंगे. लेट अज्यूम्ड मीन बी ए इक्वल्स टू 550. देखो मिड वैल्यू अज्यूम करनी है. जैसे यहाँ पर ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 है तो 2 हमने ऑब्जर्वेशन ऊपर से छोड़ दिया, 2 नीचे से, मिड वैल्यू आ गई 550. ठीक है. अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ तो ओड हो गया तो मिड वैल्यू 1 आ गई. लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ इवन होते हैं तो मिड वैल्यू 2 होती. जैसे सपोज करो 6 ऑब्जर्वेशन होते तो हम थर्ड को या फोर्थ को कोई से भी, किसी को भी मीन अज्यूम्ड मीन चूज कर लेते हैं. ठीक है. अब हमारे पास एक डेविएशन निकालना है. डेविएशन क्या निकालेंगे? DI. DI कैसे निकालेंगे? जितनी भी XI की वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं सब में से A सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है. यानी कि 510 में से 550 लेस कर देंगे. 510 में से 550 लेस कर दो, माइनस के 40 आ गया. 530 में से 550 लेस कर दो, माइनस के 20 आ गया. 540 में से 550 में से 550 लेस करो, 0 आ जाएगा. 570 में से 550 लेस कर दोगे तो 20 आ जाएगा. और 590 में से 550 लेस करेंगे तो 40 आ जाएगा. क्लियर? अब FIDI तो 12 को माइनस 40 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 480. 12 को माइनस 40 से FIDI में FI को DI से मल्टीप्लाई करना है. तो FI 12 है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग जो इसका DI है 40. तो 12 को माइनस 40 से मल्टीप्लाई किया माइनस 480. 14 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 280. 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0. 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 120. और 10 को 440 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ गया. ठीक है. इनको अगर ऐड करें तो 0 8 और 8 16 4 2 6 1 7 माइनस 760. और यहां ऐड करें तो 520. क्लियर? यानी कि माइनस के हमने ऐड कर लिए माइनस 760, प्लस के नंबर ऐड कर लिए 520. अब माइनस 760 प्लस 520 सिग्मा FIDI हमारे पास हो गया. प्लस करें इनको तो 6 4 6 में से 2 लेस करें 4, 7 में से 5 लेस करें 2, माइनस के 240. ठीक है. अब हमारे पास मीन डेली
वेजेस, मीन डेली वेजेस क्या आ जाएगा, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ए इज, वेयर इज ए इज 550, sigma fi di minus 240 and sigma fi is 50. कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया. 550 minus 24 upon 5, 24 upon 5 is 4.8. 4.8, तो ये हम लेस करेंगे तो 545.2 ये आंसर. क्लियर? किसी बुक में 100 to 120 हो सकता है, 120 to 140. क्लियर? तो ये भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा 145.2 आ जाएगा. यहाँ 500 से 520 है, 520 से 540 है, तो उसकी इसके अकॉर्डिंग 545.2 आंसर आया है. क्लियर? Now question number 3. The following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is rupees 18. जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है उसमें डेली पॉकेट अलाउंस है एक कुछ चिल्ड्रंस का एक लोकेलिटी का है और मीन पॉकेट अलाउंस 18 है. वी हैव टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ. क्लियर? तो दिस इज एफ आई. टोटल करें सिग्मा एफ आई 4, 5, 9, 9, 22, 31, 31 and 6, 37 and 7, 44 plus f. क्लियर? कोई सा भी मेथड यूज करें, एक्स आई सबसे पहले निकालेंगे. ठीक है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 11 प्लस 13 24 और 24 अपॉन 2 12, 13 प्लस 15 28 अपॉन 2 14, 15 17 32 अपॉन 2 16, then 18, then 20, 22 and 24. Clear? FI 7 and 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, 6 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, 13 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 8 जा 104, 13 1 जा 13, 234. f को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20f, 5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 110, 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 96. In this chapter, in this question, we are using direct method. Sigma fi xi 4 and 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 and 6 22, carry 2, 9 2 11, 1 12, 12 and 3 15, 15 4 19, 19 and 8 27 and 8 35, 5 carry 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 1 7 plus 20f. Clear? Now x bar equals to sigma fi xi upon sigma fi. x bar is 18 given है, x bar 18 given है हमें. sigma fi xi is 752 plus 20f and sigma fi is 44 plus f. Clear? क्रॉस मल्टीप्लाई करें 752 प्लस 20f इक्वल्स टू 18 को 44 से मल्टीप्लाई करें, 18 4 जा 72, 18 4 जा 72 एंड 7 79 प्लस 18f. क्लियर? 20f माइनस 18f इक्वल्स टू 792 माइनस 752. 752 को शिफ्ट कर दिया, 18f को इधर शिफ्ट किया तो 2f इक्वल्स टू 40.
792 में से 752 लेस करेंगे 40, so f equals to 14/2 is 20. So missing frequencies is 20. Clear? Now question number 4. 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute for these women choosing suitable method. These are the number of heartbeats per minute and these are the number of women, means frequency, and total women sigma Fi is 30. We are using step deviation method to calculate the mean heartbeats per minute for these women. Clear? So first of all we will find xi. किसी भी मेथड का हम यूज कर रहे हैं तो xi सबसे पहले हम यूज करेंगे. क्लियर? 65 प्लस 8 प्लस करें 2 से डिवाइड करें 66.5, ये जाएगा 65 और 68 हो जाएगा 133. 133 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 66.5. ऐसे ही इसको 139 हो गया, 139 को 2 से डिवाइड करेंगे 69.5 हो जाएगा. वैसे 72.5, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे 75.5. फिर 157 को 2 से डिवाइड करेंगे 78.5, और फिर 163 को 2 से डिवाइड करेंगे 81.5. 169 को 2 से डिवाइड करेंगे 84.5. क्लियर? एज्यूम्ड मीन लेट करेंगे तो लेट एज्यूम्ड मीन a इक्वल्स टू मिड वैल्यू लेट कर ली 75.5. अब इसमें जो डिफरेंस है क्लास इंटरवल का, जो डिफरेंस है डिफरेंस कितने का? 3 का है. हर क्लास इंटरवल में क्लास साइज 3 है तो h इज क्लास साइज क्या हो गया? 3 हो गया. क्लियर? अब देखो ui हम कैलकुलेट करेंगे. ui हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? di अपॉन h. और व्हाट इज di? di हो गया xi माइनस a अपॉन h. xi को a से माइनस करेंगे और h से डिवाइड करेंगे. xi माइनस a अपॉन h. तो di कैसे निकालते थे? xi की जितनी भी वैल्यूज है उनमें से सब में से 75.5 यानी कि a लेस कर दें और उसको फिर ui कैलकुलेट करने के लिए h से डिवाइड कर दें. तो 66.5 में 75.5 लेस करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा. माइनस के 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा. देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मैं समझा देता हूँ. फर्स्ट हमने ui कैसे कैलकुलेट करा है. 66.5 में से 75.5 लेस किया है और इसको 3 से डिवाइड किया है तो माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3 आ गया. ठीक है? ऐसे 69.5 में से 75.5 लेस करेंगे तो माइनस का 6 आएगा. माइनस का 6 को 3 से डिवाइड करेंगे माइनस का 2. ऐसे यहाँ पर माइनस 3 आएगा. माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा. 75.5 में से 75.5 लेस करेंगे 0. 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा. 78.5 में से 75.5 लेस करेंगे तो 3 आएगा. 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1. ऐसे 6 आएगा. इसको इसमें से लेस करेंगे 6 आएगा. 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 2. और 84.5 में से 75.5 लेस करेंगे तो 9 आ जाएगा. 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा. क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास ui. अब हम निकालेंगे FIUI. देन FIUI तो देखो 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 6. 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 8. 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 3. 8 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया 0. 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7. 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8. 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6. क्लियर? अब
अब माइनस के नंबर को देखो, माइनस का 17 आ गया, -6, -8, -14, -3, 17, और यहाँ पर देखिए 7 और 8 15, 6 21। क्लियर? तो सिग्मा एफ आई यू आई हमारे पास कितना आ गया, प्लस का 4, -17 + 21 प्लस का 4। क्लियर? अब हमारे पास स्टेप डिविएशन मेथड हम यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड, और x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, where a is 75.5 plus sigma FIUI is 4, h is 3 and sigma FI is 30। तो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो 75.5 plus 4 upon 10, 75.5 plus 0.4, 75.9। क्लियर? तो मीन हार्ट बीट्स पर मिनट 75.9। क्लियर? Now question number 5. In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in a packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? एक तो हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, नंबर ऑफ मैंगोज है और नंबर ऑफ बॉक्सेस है, और we will find the mean number of mangoes kept in a packing box, or which method of finding the mean did you choose? In this distribution, the number of mangoes and number of boxes are numerically large, so we shall use for finding mean the step deviation method. Clear? तो यह मेंशन भी कर सकते हैं, since the number of mangoes and number of boxes are numerically large, so we shall use step deviation method. तो यहाँ पर आप इंटरवल देखिए 50 से 52, 53 से 55, यहाँ ब्रेक हो रहा है, 52 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है, 55 से स्टार्ट होना चाहिए, 56 से स्टार्ट हो रहा है, 58 से स्टार्ट होना चाहिए, 59 से स्टार्ट हो रहा है, तो इंटरवल ब्रेक हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द इंटरवल कंटिन्यूअस बनाएंगे। कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान से सुने। लोअर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट 52 है और लोअर लिमिट सेकंड इंटरवल की, नेक्स्ट इंटरवल की 53 है, यानी कि 1 का डिफरेंस है, तो 1 का हाफ करेंगे, 0.5, जितने का डिफरेंस होता है उसका हाफ करेंगे, तो 1 का डिफरेंस है, 1 के डिफरेंस का हाफ किया 0.5, तो लोअर लिमिट में तो 0.5 क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे। तो इंटरवल को जब हम कंटिन्यूअस बनाएंगे तो ये हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा क्लास इंटरवल। इसको हम बना सकते हैं 50 से 52, यानी कि इसमें 0.5 माइनस करें तो 49.5, 52.5, यहाँ 0.5 माइनस करें 52.5, 55.5। देखो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट में माइनस कर रहे हैं, अपर लिमिट में प्लस कर रहे हैं, 55.5,
टू 58.5 और 59 में 0.5 माइनस करेंगे तो 58.5 टू 61.5 और 62 इसमें से माइनस करेंगे 61.5 से 64.5, यानी कि हमने देखा कि अपर लिमिट में तो हमने प्लस कर दिया 0.5 और लोअर लिमिट में माइनस कर दिया। ठीक है, अब 0.5 क्यों किया? क्योंकि 1 का डिफरेंस था, 52 से 53 तो 1 का डिफरेंस आ रहा था, तो 1 का हाफ करके 1 का हाफ कितना हो गया 0.5, तो 0.5 का हमने अपर लिमिट में प्लस किया और लोअर लिमिट में माइनस किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, xi निकालेंगे। xi कैसे कैलकुलेट करेंगे? xi कैलकुलेट करने के लिए हम वही यूज करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो xi हमारे पास हो जाएगा 59.5 49.5 52.5, तो 102 हो गया। 102 को 2 से डिवाइड करेंगे 51, और यहाँ पर 108 हो गया। 108 को 2 से डिवाइड करेंगे 54, देन 57, देन 60 और देन 63। क्लियर? अज्यूम्ड मीन लेट करेंगे, लेट assumed mean a equals to 57, 57 यूज कर लिया। और क्लास इंटरवल h यहाँ पर देखिए 3 का डिफरेंस है, 3 हमने यूज किया है, क्लास डिफरेंस हमारे पास 3 आ गया। तो ui अब कैलकुलेट करेंगे, ui क्या करेंगे, xi माइनस a अपॉन h, जितनी भी xi की वैल्यूज हैं उनमें से a माइनस करेंगे और उसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 51 में से 57 लेस करेंगे, -6 आ गया, -6 को 3 से डिवाइड करेंगे, -2, 54 में से 57 लेस करेंगे, -3, -3 को 3 से डिवाइड करेंगे, -1 आ जाएगा, 57 में 57 लेस करेंगे, 0 आ जाएगा, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे, 0, ऐसे 60 में से 57 लेस करेंगे, 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 1, 63 में 57 लेस करेंगे, 6 आ जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब FI UI, तो 15 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -30, 110 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -135 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 115 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 115, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50। अब कैलकुलेट करें तो यहाँ तो माइनस के 140 आ गया और प्लस के 165 आ गया। ठीक है, तो सिग्मा FI UI हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 प्लस के 165 माइनस 140, तो 125 आ गया। अब मीन नंबर ऑफ मैंगोज कैलकुलेट करेंगे, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू h। क्लियर? Here a is 57 plus sigma FI UI is 25, sigma FI is sigma FI ये हो गया 150, 260, 260, 400, टोटल 400 हो गया, अपॉन 400 प्लस 1 अपॉन 16 into h, h is 3 into 3, 25 बन जाए 25, 16 टाइम कैंसिल, 3 अपॉन 16, तो ये 57 प्लस 3 अपॉन 16, तो 57, 3 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 0.19 आ जाएगा, तो 57.19, तो मीन नंबर ऑफ मैंगोज इज 57.19। क्लियर? Now question number 6. The table below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. Find the mean daily expenditure on food by suitable method. So we used assumed mean method. Clear? So first of all we find xi, 100 plus 150, 125, 100 plus 150,
250, 250 upon 2 125, then 350 upon 2 175, and 225, 275 and 325. Clear? Let assumed mean A equals to 225. 225 मिड वैल्यू हमने लेट कर लिया, तो यहां पर हम डेविएशन करेंगे xi माइनस a, कैलकुलेट करेंगे 125 में से 225 लेस करेंगे माइनस 100, 175 में से 225 लेस करेंगे माइनस 50, 225 में से 225 लेस करेंगे 0, 275 में से 225 लेस करेंगे 50, 325 में से 225 लेस करेंगे 100. ओके, नेक्स्ट स्टेप हो गया FIDI का, क्योंकि अज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर रहे हैं. 4 को माइनस 100 से माइनस 400, 5 को माइनस 50 से माइनस 250, 12 को 0 से 0, 2 को 50 से 100, 2 को 100 से 200, तो ये हो गया 300 और ये हो गया माइनस 650. क्लियर? तो सिग्मा FIDI हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 650 और 300, तो माइनस 350 आ गया. ठीक है, अब हमारे पास x बार लेट कर रहे हैं, मीन लेट कर रहे हैं, मीन एक्सपेंडिचर. तो सिग्मा A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI. A is 225, सिग्मा FIDI माइनस 350, सिग्मा FI, तो ये हो गया 25 हाउस होल्ड्स हैं, तो इसका सम 25 होगा, अपॉन में 25, तो 225 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 350 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, 225 में से 14 लेस करेंगे 211 आंसर. क्लियर? Question number 7. To find the concentration of SO2 in the air in parts per million, that is ppm, the data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. Find the mean concentration of SO2 in the air. Concentration of SO2, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, हमें फाइंड करना है मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2. क्लियर? तो वी विल use direct method. Clear? So first of all we find xi 0.004 और 0.00 को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 0.02, ऐसे ये 0.12 हो जाएगा, 0.12 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.06, इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 0.2, 0.2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.1 आ जाएगा, ये 0.28 है, 0.28 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.14, 0.36 है, 0.36 को 1 से 2 से डिवाइड करेंगे 0.18, 0.44 है, 0.44 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.22. नाउ FIXI 4 को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.08, 9 को 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.54, 9 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.90, 2 को 0.14 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.28, 4 को 0.18 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.72, 2 को 0.22 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.44. क्लियर? सिग्मा FI is 30 because the locality is 30, number of locality is 30, and sigma FIXI, तो 4 और 2 6 और 8 14, 14 4 18, 18 and 2 18 and 8 26, 4 2 6 14, 14 4 18, 8 26, carry 2, 4 2 6 7 13, 2 15, 15 and 9 24, 24 and 5 29, तो 2.96. क्लियर? तो x बार मीन कंसंट्रेशन
concentration of SO2 is x bar sigma Fi xi upon sigma Fi. Sigma Fi xi is 2.96 and sigma Fi is 30. Clear? So this is 0.038 जा and 39 जा. 39 जा कितने हो गए? 270. 270. तो 296 में से 270 लेस करेंगे तो 26 से कितना हो जाएगा? 260 हो जाएगा. 260 यानी कि 8. 260 है तो 38 जा 240 तो 0.098. क्लियर? अप्रॉक्स तो मीन कंसंट्रेशन इज 0.098. क्लियर? Now question number 8. A class teacher has the following absentees record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. Number of days 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20. This is the number of days. Number of the student 11, 10, 7, 4, 4, 3 and 1. Clear? Now first of all we find xi. 6 plus 0 plus 6 is 6. 6 upon 2 is 3. 16 and divided by 2 is 8. 24 divided by 2 is 12. 34 divided by 2 is 17. 48 divided by 2 is 24. 66 divided by 2 is 33. And this is 78 divided by 2 is 39. Okay, and let assumed mean A equals to 17. Clear? We will use to solve this question assumed mean method. Clear? Here di is xi minus a. 3 minus 17 is minus 14. 8 minus 17 is minus 9. 12 minus 17 is minus 5. 17 minus 17 is 0. 24 minus 17 is 7. 33 minus 17 is 16. And 39 minus 17 is 22. Clear? Now FIDI 11 into 14. So 11 for that 44, 11 1 11 and 5 16. 10 into minus 9 minus 90. 7 into minus 5 minus 35. 4 into 0 is 0. 4 7 is 28. 3 into 16 48 and 1 is 22. The sigma FIDI is 164 and 19, 254. 254 and 35, 254 and 35, 289, and this is 8 and 8, 8, 16, 16 and 2, 18, 2 and 1, 3, 4, 7, 7 and 2, 9, 8, 8, 16, 2, 18, 2, 2, 4, 4, 4, 8 and 1, 9. Okay, so now subtract 9 में से 8 लेस करेंगे 1, 18 में से 9 लेस करें 9, 119 1 माइनस. क्लियर? नाउ मीन नंबर ऑफ डेज xi x bar equals to a plus sigma fi di upon sigma fi. A is 17 minus 191. सिग्मा fi di is माइनस के 191 और सिग्मा fi तो 40 स्टूडेंट बिकॉज रिकॉर्ड 40 स्टूडेंट का है तो अपॉन डिवाइडेड बाय 40 तो 17
46 जा सॉरी 4 जा 160, तो 191 में से 160 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 31, 31 से 310 हो जाएगा। 14 7 जा 280, ठीक है, तो अप्रोक्स 4.7, तो लेस करेंगे ये हो जाएगा 0.3, 6 में से 4 लेस करेंगे 2, 1, 12.3 आंसर, ठीक है। तो मीन नंबर ऑफ डेज इज 12.3। क्लियर? Now question number 9, last question of this exercise. The following table gives the literacy rate in percent of 35 cities. Find the mean literacy rate. Literacy rate. These are the literacy rate and number of cities. Clear? The number of cities is 35. Sigma Fi is 35. 8 3 11 25. 8 3 11 11 11 22. 10 32 and 3 35. This is Fi. अब Xi class mark is 55. 45 plus 55 is 100. 100 upon 250. Then 60, 70, 75 and 80 160. 160 upon 280, and this is 190. Sorry, 180. 180 upon 290. Okay. We will use to find the mean literacy rate direct method. So Fi Xi is 30 into 150 150, 10 into 60 600, 11 into 70 770, 8 into 80 640, 3 into 90 is 270. So sigma Fi di Fi Xi is, this is 0, 7 or 4 11, 17 नहीं 18, 18 5 23, 6 2 8 1 9, 10 17 23 and 1 24. Clear? So now X bar is sigma Fi Xi upon sigma Fi mean literacy rate. X bar equals to sigma Fi Xi is 2430 upon sigma Fi is 35. So cancel करें 5 से, this is 7 और 5 4 जा 20 और 4 3 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, ठीक है। और 7 6 जा 42, 48 में से 42 लेस करें 6 66, 7 9 जा 63। क्लियर? तो 66 में से 63 लेस करेंगे 3, 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, 69.42 आंसर। थैंक यू।